So everybody likes paisa. So are you able to see the screen? I am able to see. Is this visible to everyone? Yes, it is visible. Okay, so I call it as a 5 secret to happy financially life. The reason money is important is in all times, more so important in current times. अगर आपके पास पैसा है और प्रोसेस आपका कंट्रोल में है तो यू कैन लिव स्ट्रेस फ्री, एंड मनी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ स्ट्रेस. Am I right in saying this? Can somebody type yes, no? Yes, thanks Vikram. Urvi, next slide. Urvi, next slide, because I am not able to change. So next. So essentially, क्योंकि I do this workshops over a 2 year and 2 hour program and a 1 day full program. So it is what I have done in this. I cover major products. So क्योंकि this is an half an hour webinar, it would be like a trailer workshop. आपको पिक्चर अलग से देखना पड़ेगा. So essentially financial products को 4 बकेट में बांटा जा सकता है. For transactions, banks, wallet and card है. 2 loans है, home loan और education loan. But the best part of Indians is Indians travel abroad on EMI. वो लोग स्मार्टफोन भी लोन पे लेते हैं. Am I audible? Is my speed fine? Yeah, it is. Thanks. Investments के लिए बहुत. Can you please raise your? Yeah. तो और इन्वेस्टमेंट्स के लिए FD, RD बहुत सारे ऑप्शंस है. सो सबके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज टाइम इज रेस्ट्रिक्टेड. फ्यू 1-2 के बारे में बात करूंगा बिकॉज इट्स अ प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग. Next is for covering financial losses. There are a lot of different types of insurance. Again, if I speak about different, that again will take a lot of time. तो एक तो important from a personal finance angle बात करूंगा मैं. Urvi, next slide. So is investing important? I'm sure all of you will agree it's right. Now, what is investment? कुछ basic but is what is that? Can somebody explain the difference between saving and investment? एक जन unmute करके. I repeat, can someone explain the difference between savings and investment? One of you by unmuting. Hello. Yeah. Hi, I'm Nancy. I would just like to attempt. I'm not sure. Sure. Appreciate. Aside from your earnings, that doesn't work for you. That doesn't earn you more money. That is for your safety purpose, like in emergency you can use. Investment is something that you're putting a chunk of amount to make it more. Like for example, perfect, Nancy. Yeah. You got it right. Okay, पैसा बचाना मतलब पैसा बचाया आपने, सेव किया है सिर्फ, उसको इन्वेस्ट नहीं किया. एक एग्जांपल है, किसी का पगार अगर 1 लाख रुपया है और 80,000 रुपया उसका खर्चा है तो 20,000 रुपया उसने बचाया है. आउट ऑफ 20,000 लेट्स अज्यूम वो 5,000 रुपया का SIP करता है, 3,000 रुपया का RD करता है, तो इन्वेस्टमेंट 8,000 रुपीज का हुआ है, जबकि बचाया था उसने 20,000 रुपया, उसने इन्वेस्ट सिर्फ 8,000 रुपीज किया. So how does a common man begin saving is by this example only. इनकम आता है, इनकम में से पैसा खर्चा कर देता है एंड फिर बचा हुआ पैसा सेव करता है एंड सेविंग से बचाता है. आई रिपीट, income minus expense is equal to saving for an ordinary guy. But what do smart people do? Smart people includes people like Warren Buffett, who is the richest guy in the world. And उसने पूरा पैसा यही philosophy से बनाया. Warren Buffett says that he flips the equation. He says income minus saving is equal to expense. वो पहला पैसा बचाता है, बाद में बचा हुआ पैसा ही खर्चा करता है. And Warren Buffett even today doesn't have a credit card. तो कर्जे में बिलीव ही नहीं करता हूँ. Next slide, Urvi. So some myths about Indian investment behavior is, how do Indians do investment is, स्मार्टफोन खरीदना होगा तो हम ज्यादा रिसर्च करते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट्स के बारे में मेनी पीपल वो लोग मम्मी पापा पे छोड़ देते हैं या LIC एजेंट किस पे छोड़ देता है. तो ये हमारा मेहनत का पैसा है. सो आई फील वी शुड बी मोर, ज्यादा रिसर्च हमको इन्वेस्टमेंट्स में करना चाहिए. Am I right in saying this?
So many people don't like to, they blindly rely on someone or they don't want to take up the responsibility. Even when I see youngsters in college, लोग बोलते हैं मेरा investments मेरे पापा देखते हैं at the start of their career. Thanks Saloni, thanks. Okay, so what they think is अगर neighbor next point is बाहर जाना होगा तो हम इंश्योरेंस के बारे में लेते हैं, बट इंडिया में इंश्योरेंस के बारे में हम वी डोंट थिंक. नेबर ने 5 लाख का कार लिया, 5 लाख 2 लाख रुपया बर्थडे पार्टी में सेलिब्रेट किया, तो वी थिंक दैट हमको उससे ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहिए. सो पीपल बोरो एंड go abroad, people borrow and spend on birthday parties etc. Not, that's all unnecessarily expensive I would say. And best is हम यही सोचते हैं अच्छा मुझे होगा बुरा पड़ोसी को होगा, पड़ोसी भी वही सोचता है ना, अच्छा उसको होगा बुरा मुझे होगा. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस हम सिर्फ टैक्स एंगल से सीखते हैं ज्यादा करके लोग. सो माय ऑब्जेक्टिव इज ये सबके बारे में माइंडसेट चेंजेस है, तो जिसी के बारे में मैं आगे बात करूंगा. उर्वी नेक्स्ट स्लाइड. सो टेक्निकली इंडियंस क्या करते हैं, सब इन्वेस्टमेंट्स का एक भेलपुरी बना देते हैं. इसको मैं 5 स्टेप अप्रोच बोलता हूँ. दैट्स व्हाई आई कॉल 5 सीक्रेट. तो मैं सीक्रेट नंबर 2 से शुरुआत कर रहा हूँ. एंड स्टार्टिंग विद सीक्रेट नंबर 2. टिपिकली हाउ डज इंडियंस इन्वेस्ट इज, वो सब इन्वेस्टमेंट का एक भेलपुरी बना देते हैं. ओके, भेलपुरी मतलब क्या, 5 साल के बाद पैसा चाहिए, 15 साल के बाद पैसा चाहिए, या कभी भी पैसा चाहिए, एक LIC पॉलिसी ले लो, दैट्स द फेवरेट. ओके, इसके अलावा कुछ पैसा लमसम आ गया, एक कट्टा पैसा आ गया, तो व्हाट हैपेंस इज बैंक FD जिंदाबाद. ओके, सो टुडे इंडियंस हैव इन्वेस्टेड अराउंड 120 लाख करोड़ रुपीस इन बैंक FDs. आई रिपीट, 120 लाख करोड़ रुपया बैंक FD में. ये जनवरी फरवरी का डेटा है, मार्च का डेटा अभी तक आया नहीं है. So that big is bank FD. So this approach was okay sometime back, but this needs a change. So let's see how to make your investments in a simple way. I call it the 3 bucket approach to investments. Urvi, next slide. First is bucket 1 में emergency पैसा, अगला 3 महीने का खर्चा होना चाहिए. Classic example है. Today, because of COVID, many people's income etc. has been hit. That includes people like me who are freelancers. Income hit हो गया, so emergency का पैसा यहाँ पे होना चाहिए bucket 1 में. Then bucket 2 में पैसा आएगा. Is my speed fine? Can somebody type? Thanks Sachin. Okay. So bucket 2 में कौन सा पैसा आएगा, अगले 5 साल में जो पैसा खर्चा होने वाला है वो आएगा. It could be मेरे को कुछ कार खरीदना है, मेरे को फैमिली को वेकेशन में लेके जाना है, या बच्चे का कुछ थ्रेड सेरेमनी है, उसका खर्चा आएगा. सो दैट विल बी इन बकेट 2. एंड बकेट 3 विल बी लॉन्ग टर्म, मेरा रिटायरमेंट का पैसा, मेरा बच्चे का इंजीनियरिंग कुछ बनना है, उसका पैसा आएगा. ओके, सो टिपिकली इंडियंस क्या करते हैं, ये 3 बकेट अप्रोच में होता है, सबके लिए एक भेलपुरी या मिसल पाव बना देते हैं. सो आर यू क्लियर विद बकेट 1, बकेट 2, बकेट 3? नेक्स्ट स्लाइड. पूर्वी नेक्स्ट. सो हर इसके लिए, हर बकेट्स के लिए अलग अलग प्रोडक्ट है विच वी विल डिस्कस. ओके, सो बकेट 3 के लिए सिंपल है, म्यूचुअल फंड बैंक में RD कर सकते हो आप बकेट 1 के लिए. ओके, बकेट 2 के लिए भी RD बैंक FD सिंपल प्रोडक्ट्स है, या डेट म्यूचुअल फंड्स भी है. बकेट 3 के लिए यू विल नीड टू शिफ्ट योर इन्वेस्टमेंट थिंकिंग. बकेट 3 में FD नहीं होना चाहिए. आई रिपीट, बकेट 3 में FD नहीं होना चाहिए, वहां पे इक्विटी म्यूचुअल फंड NPS वगैरह होना चाहिए. NPS इज नेशनल पेंशन स्कीम. तो बकेट 1 और बकेट 2 के लिए बैंक FD ठीक है इन केस, और डेट म्यूचुअल फंड्स ठीक है, लेकिन बकेट 3 के लिए कुछ पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP होना चाहिए. SIP इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इन टुडेज सिनेरियो आई कॉल इट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान. ओके, व्हाट इज स्मार्ट? इफ वी हैव टाइम आई विल टेक अप इट एज अ पार्ट ऑफ Q&A. सो आर यू क्लियर विद बकेट 3 बकेट अप्रोच? सो मेरा माई सन इज 8 years old, उसको 12 साल के बाद इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, कुछ पैसा मैं म्यूचुअल फंड में SIP कर रहा हूँ, विच आई एम श्योर ओवर पीरियड ऑफ 10 years, विच ओवर पीरियड ऑफ 10 year प्लस मेरा नुकसान नहीं होगा. तो इक्विटी में SIP करना है तो सिंपल टेस्ट मैच के लिए, टेस्ट मैच मतलब मिनिमम 10 साल तक आपका इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. ये टेस्ट मैच है, ये 1 day भी नहीं है, 2020 भी नहीं है, और टेस्ट मैच मतलब मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, तब आपका नुकसान 0 होगा. नुकसान आंकड़े ये बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस ओवर ए 10 year पीरियड इज 0 है. ओके, तो उससे कम 3-5 साल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स है. ओके,
तो माई main focus of the training is towards the end I will be speaking about bucket 3 only. But इससे क्या होता है, I am earmarking my investments based on goals. Next slide. Next. Thanks. So इसके बारे में मैं बात करता हूँ, और बकेट 3 में मैं मेरा बच्चे के लिए कुछ पैसा इस SIP कर रहा हूँ ताकि 10-12 साल के बाद कुछ पैसा मिलेगा। रेगुलर SIP कर रहा हूँ। आई टेक एन एग्जांपल, आई स्टे इन मुंबई। अभी तो लोकल ट्रेन बंद है, सो मुंबई से पनवेल से मेरे को VT जाना है, तो हर स्टेशन में मैं 3,500-4 हज़ार रुपये का कुछ ABCD फंड में SIP कर रहा हूँ। आई रिपीट, 3,500-4 हज़ार रुपया हर दो से तीन फंड में मेरा SIP चल रहा है फॉर माई सन्स एजुकेशन, हु इज 8 years old. माई गोल इज 12 years. मेरे को VT जाने के बाद पैसा चाहिए। इज दिस क्लियर? ओके, गाड़ी पनवेल से निकली है, VT में मेरे को पैसा चाहिए, और गाड़ी 2, 3, 4 स्टेशन तो चला गया है। उसके बाद लेट्स टेक एग्जांपल दैट सीवुड नेरुल तक भी गाड़ी सही पहुंच गया। नाउ सीवुड के आगे गाड़ी निकला, नेरुल के आगे गाड़ी निकला, मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। आई फील थिंग्स आर गोइंग गुड, मेरे को चलते चलते गाड़ी नेरुल से आगे निकला, मेरे को दिल में थोड़ा पेन, डिस्कम्फर्ट हुआ। मुझे लग रहा है शायद ये एसिडिटी है, लेकिन क्या हो रहा है समझने से पहले मालूम पड़ा है, वो नेरुल से जूही नगर जाने से पहले मालूम पड़ रहा है इट इज हार्ट अटैक एंड ट्रेन रीचेस जूही नगर, बट आई एम नॉट देयर. So who will ensure that, which financial product will ensure that my family reaches, मेरा बच्चे का एजुकेशन गोल इज VT. इसके लिए इंश्योरेंस में एक प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस. आई रिपीट, इंश्योरेंस में एक थैंक्स इंश्योरेंस में एक प्रोडक्ट है टर्म इंश्योरेंस करके. नाउ टर्म इंश्योरेंस इज सिंपल इंश्योरेंस जिसमें कोई रिटर्न नहीं होता है. लेट्स अज्यूम somebody is age 35. इस ग्रुप में who are attending somebody is age 35, उसको 50 लाख का कवर चाहिए. अंदाजा बता रहा हूँ, अंदाजा 8,000 रुपीज प्रीमियम आएगा. नाउ हाउ डज दिस वर्क इज, ये 8,000 रुपीज में मैच्योरिटी में कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, बट द एडवांटेज इज फैमिली के लिए 50 लाख का एसेट आज के दिन में ही दिस 35-year-old जेंटलमैन हैज क्रिएटेड बाय सिंपल 8,000 रुपया साल का भरोगे तो. एंड आई एम अज्यूमिंग दैट वो नॉन स्मोकर है. स्मोकर रहेगा तो शायद 2,000 रुपया ज्यादा भरना पड़े. एंड ये डिक्लेयर कर दो ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन मेनी इंडियंस दे डोंट डिक्लेयर. ओके, वहां पे भी क्लेम में डेफिनेट प्रॉब्लम आएगा. डिक्लेयर करो तो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं डिक्लेयर करो तो प्रॉब्लम आएगा. तो कितना इंश्योरेंस होना चाहिए? अपने मंथली इनकम का 150 टाइम्स कवर होना चाहिए. आई रिपीट, मंथली इनकम का 150 टाइम्स कवर होना चाहिए. एक एग्जांपल है, लेट्स अज्यूम इन दिस फोरम somebody is getting 1 लाख रुपया कमा रहा है महीने का, तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 150, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 150, उसका 1.5 करोड़ का कवर टर्म इंश्योरेंस में होना चाहिए. और थोड़ा कम नीचे 1.25 करोड़ होगा तो भी चल जाएगा, बिकॉज लेट्स अज्यूम पैसा नहीं है, 1.25 करोड़ के आसपास तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा. एंड इसको भी रेगुलर रिव्यू करना चाहिए. जस्ट लाइक इंडियंस अपग्रेड स्मार्टफोन रेगुलरली, ओके, बट तो लाइफ कवर को भी अपग्रेड करना चाहिए. नॉट मेनी इंडियंस अपग्रेड दिस. So are you clear? Term is a simple insurance जिसमें लाइफ कवर मैच्योरिटी में पैसा रिटर्न नहीं मिलेगा. वो इसके बाद आता है एंडाउमेंट, मनी बैक, वो सब प्लान भी जरूरी है. बट गॉड फॉरबिड, एवरेज इंडियन, सब आंकड़े बताता हूं मैं, एवरेज इंडियन के पास 2 लाख से ज्यादा का पॉलिसी नहीं है. आई रिपीट, रीजन वही है, एवरेज इंडियन के पास 2 लाख से ज्यादा का पॉलिसी नहीं है, बिकॉज उसको लग रहा है मुझे कुछ नहीं होगा. So an incidents like COVID, I feel it's an eye opener, and आप भी देख सकते हो because of this COVID happening, sales of term insurance and health insurance has increased by good amount of percentage, क्योंकि लोगों के दिमाग में डर बैठ गया है. So this is one thing positive about that. Next slide. पूर्वी, next slide. So यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं. बहुत सारे इंडियंस टर्म इंश्योरेंस लेते ही नहीं है. क्यों? क्योंकि वही है रीजन, उनको लगता है मुझे कुछ नहीं होगा. एंड एक और रीजन है क्योंकि मैच्योरिटी में रिटर्न नहीं मिलेगा, तो हमारा मेंटालिटी है इंश्योरेंस में रिटर्न चाहिए. तो इंश्योरेंस का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इंश्योरेंस है, उसके बाद रिटर्न सेकेंडरी आता है. ओके, तो ये सोचना चाहिए कि अभी तो लोकल ट्रेन बंद है, मुंबई बंद है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन. ये सोचना चाहिए आज शाम को अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो क्या होगा, मैं रिटर्न नहीं गया तो फैमिली को किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा. क्योंकि एक सिंपल एग्जांपल है, लेट्स अज्यूम महीने का खर्चा 25,000 रुपया है और 2 लाख का पॉलिसी है. आई रिपीट, महीने का खर्चा 25,000 रुपया है, घर का राशन का खर्चा, तो 8 महीने में ये 2 लाख रुपया खत्म होने वाला है. तो इसीलिए वो फॉर्मूला से कवर होना चाहिए, उसको भी अपग्रेड करना चाहिए. नेक्स्ट.
Next slide, Urvi. So other equally important power bank product is health insurance. Okay, again COVID is classic example and eye opener कि बीमारी किसी को भी आ सकता है, लोगों के दिमाग में डर बैठ गया, बट स्टिल आई फाइंड कुछ लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस का सेल्स बढ़ गया, बट स्टिल आई फाइंड दिस इंक्लूड्स एजुकेटेड पर्सन, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को मैं जानता हूँ जो बोलता है मैं क्यों मेडिक्लेम में पैसा खर्चा करूं, मेरे को तो कंपनी दे रहा है. आई रिपीट, मला कशाला मी कशाला ग्रुप मेडिक्लेम घ्यायचं, मला तर कंपनी का कवर भेटता है. तो कंपनी आज कवर दे रहा है, हमेशा कवर नहीं देगा. ओके, क्यों कंपनी का भी सेल्स डाउन होगा ऐसा सिनेरियो में, तो कंपनी भी कॉस्ट कटिंग में, इंश्योरेंस इज द नंबर 1 बेनिफिट विच कंपनीज रिड्यूस. आई रिपीट, कॉस्ट कटिंग के जमाने में ये इंश्योरेंस पे नंबर 1 तकलीफ होता है, कॉस्ट कटिंग होता है. एंड ये दोनों इंश्योरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है. आई रिपीट, इंश्योरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी के सामने डिपेंडेंट नहीं रहने का. आई रिपीट, इंश्योरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव है किसी के सामने डिपेंडेंट नहीं रहने का. सो व्हाई आई शुड बी डिपेंडेंट अपॉन समवन? इट कुड बी एन एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय का कवर जनरली छोटा रहता है, 5-6 लाख से ज्यादा नहीं रहता, विच इन टुडे सिनेरियो इज ग्रॉसली इनसफिशिएंट. तो ये दो, नेक्स्ट स्लाइड. तो ये दो फंडामेंटल है. अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तगड़ा है, देन द फाउंडेशन बिकम स्ट्रॉन्गर, नहीं अदरवाइज इट्स अ प्रॉब्लम. ओके, नाउ देयर आर ओनली 2 गुड लोन्स. आई रिपीट, 2 ही अच्छे लोन है, एक है होम लोन, दूसरा एजुकेशन लोन. ओके, बट इंडियंस लोग स्मार्टफोन भी ईएमआई में ले लेते हैं आज के जमाने में. वो लगता है 0% ईएमआई मतलब फ्री में मिल रहा है करके ले लेता है, बट हकीकत वो नहीं है. ओके, वो 0% ईएमआई में भी चार्जेस इनबिल्ट रहता है, बिकॉज दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं देता. सिंपल लॉजिक है. ओके, एंड मेनी पीपल ट्रैवल अब्रॉड. ऑफ कोर्स अभी बंद हो गया है, बट ट्रैवल अब्रॉड लाइक सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, ये सब भी ईएमआई में जाते हैं. सो आई बिलीव ये सब के लिए पैसा बचा के जाओ, ईएमआई में मत जाओ. पहले पैसे बचाओ देन गो. ओके, तो आपका टोटल ईएमआई आइडियली कितना होना चाहिए? 25% ऑफ योर इनकम तक होना चाहिए. मुंबई जैसे सिटी में 30% भी ठीक है. अगर हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं, दोनों को बोथ आर अर्निंग, देन 35% इज ओके, बट इंडिविजुअली इट इज 25. बॉम्बे जैसे सिटी में 30 इज ओके, बिकॉज प्रॉपर्टी प्राइसेस आर स्टिल वेरी वेरी एक्सपेंसिव. एंड हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, तो 35% के आसपास ईएमआई में जा सकता है आपका. नेक्स्ट स्लाइड उर्वी. ठीक है, नेक्स्ट इज आई बिलीव यहाँ पे कुछ सैलरीड एम्प्लॉइज भी रहेंगे, तो उनके एंगल से जितना हो सके उतना टैक्स बचाइए. गवर्नमेंट बहुत सारा सेक्शन देता है, HRA करके है, जिसमें आप HRA अंडर सेक्शन 10-13 है, ये हाउस रेंट अलाउंस है. देन लीव ट्रैवल अलाउंस मिलता है, इसको इस्तेमाल कीजिए. देन ATC में हमको आई रिपीट 1.5 लाख रुपया मिलता है, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाइए. ओके, अब ATC में आपका प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, फॉर सैलरीड गाय प्रोविडेंट फंड आ जाएगा, होम लोन प्रिंसिपल आ जाएगा, और म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन है ELSS करके. आई रिपीट, ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए. ओके, द एडवांटेजेस, इसमें लॉक इन सबसे कम है, 36 मंथ्स का ही लॉक इन है, 3 साल SIP का लॉक इन है. एंड जस्ट टू ऐड, करंट फाइनेंशियल ईयर बिकॉज ऑफ कोविड गवर्नमेंट ने जून तक एक्सटेंड किया है, जून 30 तक एक्सटेंड किया है. तो किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट ATC का नहीं किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, तो अगले 3 महीने में कर सकते हैं. एंड मार्केट भी अच्छा खासा गिरा है, तो इट्स ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. आई रिपीट, क्योंकि मार्केट भी गिरा है तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है. एंड ELSS का रिटर्न पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो बढ़िया है, ओवर ए 15 ईयर पीरियड विच इज गुड लॉन्ग टर्म पीरियड. और दी सबसे खराब ELSS, आई रिपीट, सबसे खराब ELSS ने भी 12% रिटर्न दिया है. आई रिपीट, सबसे खराब ELSS ने 12% रिटर्न दिया है. ओके, तो मेनी इंडियंस इन्वेस्ट इन PPF का इंटरेस्ट रेट अभी 7% के आसपास हो गया है आफ्टर. अगर आपका सैलरी 12 लाख के ऊपर है तो NPS में जरूर इन्वेस्ट कीजिए. आई रिपीट, सैलरी 12 लाख के ऊपर है तो NPS में जरूर इन्वेस्ट कीजिए. ओके, देन एजुकेशन लोन का सेक्शन है, ओके, ATE करके इसका भी इस्तेमाल कीजिए. देन होम लोन का अच्छा सेक्शन है 24/1, इसमें 2 लाख तक टैक्स बेनिफिट कमा सकता हूँ. मैं होम लोन के बारे में आगे आऊंगा. तो ये बेसिक है, ऑप्टिमाइज टैक्स बेनिफिट्स गिवन बाय गवर्नमेंट. नाउ करंट बजट में कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में 1 मिनट बात करूंगा. अब करंट बजट में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, जिसको ये सब चाहिए वो कंटिन्यू कर सकता है,
जिसको ये सब नहीं चाहिए उसके लिए टैक्स ब्रैकेट कम हो जाएगा। आई रिपीट, जिसको ये सब डिडक्शन नहीं चाहिए उसके लिए टैक्स रेट कम हो जाएगा। ये क्यों रखा है, सिंपल लॉजिक है, क्योंकि आज के दिन में बहुत सारे यंगस्टर्स जिनको जॉब मिलता है वो लोग बोलते हैं हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको जिंदगी ना मिले दोबारा, हमको स्पेंडिंग ज्यादा करना है, तो हमको फ्रीडम चाहिए, हमको आप पाबंदी मत कीजिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सेक्शंस निकाल दिया गया है। बट ओल्ड पॉलिसी होल्डर के लिए, ओल्ड टैक्स पेयर्स के लिए दोनों सेक्शन चालू रहेगा, पुराना भी चालू है, नया भी चालू है ना, पुराना बंद नहीं हुआ है। एंड आई एम श्योर पुराना पॉलिसी इंक्लूडिंग मी, क्योंकि वी आर अवेलिंग ऑफ दीज बेनिफिट्स, तो ऑब्वियसली मैं पे कर रहा हूँ तो मैं इसका फायदा उठाना चाहूंगा। कृष्णा विक्रम या विक्रम, ये एवरी ईयर अभी रिपीट होगा क्या सेम फंडा? एवरी ईयर रिपीट होगा मतलब मतलब ये लास्ट ईयर वाला फाइनेंशियल ईयर और ये वाला टैक्स पे, तो दोनों मतलब ऑप्शन है ना, कोई भी अवेल कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ, ये फिलहाल तो तक वो तो लाइफ लॉन्ग। ओके ठीक है। अच्छा सवाल है, इससे सबसे बड़ा सरदर्द दो लोगों का सरदर्द बढ़ने वाला है। एक तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सरदर्द बढ़ने वाला है, क्योंकि उसको दोनों सिस्टम से काम करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी दोनों सिस्टम चलाना पड़ेगा। ऐसा पुराना भी बंद नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे, मैं तो पुराना ही चाहूंगा, मैं सिंपल लॉजिक है, मैं भर रहा हूं तो मैं फायदा उठाना चाहूंगा विक्रम। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। सो सीक्रेट है हाउ टू फिल बकेट नंबर 1 फास्टर, जिसके बारे में मैंने बात ही नहीं किया। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ पुराना जमाने में देखोगे, व्हेन आई वाज स्मॉल, मैं मेरे मम्मी के साथ जाता था, पापा के साथ जाता था, बैंक में पैसे निकालने के लिए जाता था, और टोकन मिलता था, तो ऐसा लाइन में खड़ा रह के पैसा निकाला जाता था। लेकिन आज के दिन में ये जाना होता ही नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गया है, वॉलेट्स आ गया है, तो थिंग्स आर वेरी फास्ट। नाउ व्हाट इज द, इसका डिसएडवांटेज क्या है? मेनी अ टाइम्स वो बैंक में पैसा पड़ा है, ओके, वॉलेट में पैसा है, तो वी स्टार्ट डूइंग अननेसेसरीली स्पेंड्स। अभी तो ऑनलाइन बंद है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा सब बंद है, लेकिन एक बार सेल चालू हो जाता है तो मेनी पीपल गेट ल्यूड बाय डिजिटल मार्केटर्स। वो स्कीम आ जाता है बोगो करके, बोगो का सिंपल फुल फॉर्म है बाय 1 गेट 1 फ्री। फिर उस पे SBI कार्ड रहेगा तो आपको 10% कैशबैक, सिटी बैंक कार्ड रहेगा तो 15% कैशबैक। तो कैशबैक और फ्री बीस के लालच में जरूरी नहीं है उस पर भी हम ज्यादा खर्चा कर देते हैं, तो ये क्रेडिट कार्ड वाला पैसा जितना उसमें उतना कम कर दीजिए। क्रेडिट कार्ड के बजाय डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कीजिए। वाई? बिकॉज डेबिट कार्ड विल बी योर प्लानिंग, प्लान बेस्ड हो। नेक्स्ट। So what do we call our banking account next? So अपने पास everybody should have minimum 2 accounts. I repeat, minimum 2 अकाउंट होना चाहिए, और सेकेंड अकाउंट का जितना हो सके उतना एक्सेस इंटरनेट बैंकिंग वगैरह बंद कर दो, ऐप वगैरह भी बंद कर दो। Now what do many people do? एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। Many salaried guys, आप बिजनेसमैन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। सैलरीड गाइज व्हाट दे डू इज, 30 तारीख को सैलरी आया तो उनका EMI वगैरह जाने वाला है, 15 तारीख के आसपास से पैसा जाने वाला है, तो दे नो 12 तारीख को पहला पैसा जाएगा, 15 तारीख को मेरा सेकंड EMI जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसा ही सैलरी में पैसा आया, मेजर पैसा वो लोग लिक्विड फंड में या डाइवर्ट करते हैं। लिक्विड फंड ऐसा फंड है जहाँ पे आप एक दिन के लिए भी आपका पैसा बैंक में रख सकते हो, या ओवरनाइट फंड करके जहाँ पे आपका पैसा आप RBI को दे सकते हो। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस? इसमें आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। आई रिपीट, सेविंग बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, एंड बेटर इंटरेस्ट रेट नहीं है, पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि पैसा कंट्रोल में रहेगा तो फिजूल खर्च हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का मेजर सेल देखोगे, महीने के पहले 10 दिन में ज्यादा सेल आता है। आई रिपीट, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो भी ज्यादा सेल आता है, मिंत्रा का ज्यादा करके सेल पहले 10 दिन में आता है, क्योंकि तभी आदमी के पास पैसा रहता है करके। सो दे ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट एडवांटेज। तो पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, देयर इज अ बिग चांस दैट यू विल ऑटोमेटिकली बी मोर डिसिप्लिन्ड इन योर स्पेंडिंग। सो प्रोसेस सही होना चाहिए। नेक्स्ट। फिर वो लिक्विड फंड 10-12 दिन पैसा रखेंगे, फिर वहां से बैंक में वापस ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 5 सीक्रेट क्या है फाइनेंशियल प्रोसेस के लिए? नंबर 2 सीक्रेट, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, मंथली इनकम का 150 गुना। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात किया, और ये दोनों अपग्रेड करते रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट्स को अपने 3 बकेट में बांटिए, 3 महीने का इमरजेंसी का खर्चा, 5 साल और ग्रेटर देन 5 इयर्स। EMI कम रख, EMI का कैलकुलेशन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट इज
टैक्स सेविंग्स के लिए 4 ही विकल्प है, ELSS जिसके बारे में मैंने बात किया है, EPF, होम लोन और NPS। ओके, एंड नेक्स्ट इज जितना हो सके उतना कम पैसा सेविंग बैंक में रखिए, उसको दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए ताकि पैसा आपके कंट्रोल में नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। तो आपका गोल क्या होना चाहिए? अगेन सेविंग्स फाइनेंशियल शुड ऑलवेज बी, कोई भी काम करते हो तो उसमें गोल होना चाहिए। तो आपका अगले 12 महीने में गोल क्या होना चाहिए? अगले 12 महीने में आपका गोल होना चाहिए अगला 3 महीने का इमरजेंसी पैसा अगला 12 महीने में हो जाए। एग्जांपल है कोविड, कुछ भी सिचुएशन आ गया, कोविड अगेन एग्जांपल है, बहुत लोगों का आंखें खोल दिया ये। ओके, अगला 12 महीने में अगला 3 महीने का इमरजेंसी खर्चा होना चाहिए, और अगला 5 साल में जो भी बड़ा खर्चा आने वाला है, रिपीट, अगला 5 साल में जो भी बड़ा खर्चा आने वाला है, आपको हॉलीडे जाना है, जहां पर भी जाना है, घूमने जाना है, घर खरीदना है, वो अगले 5 साल का बड़ा खर्चा अगले 3 साल में आपको इकट्ठा करना है। तो ये अगर आप प्रोसेस से काम करोगे तो अगर आपका प्रोसेस सही है तो यू विल ऑटोमेटिक, पीरियड आगे पीछे हो, ये 12 का 14 हो सकता है, 3 साल का 3.5 साल हो सकता है, लेकिन अगर आपका प्रोसेस सही है तो यू विल बी फाइनेंशियली फ्री वेरी सून। सो दैट वाज अबाउट मी। नाउ नेक्स्ट आई एम डन, यू कैन आस्क क्वेश्चंस नाउ। सिंस आई हैव 2 मिनट, एक पॉइंट बताता हूं। हेलो, एक सिंपल पॉइंट है, या घर एक ही लीजिए। आई रिपीट, इंडियंस आर वेरी इमोशनल, एक ही घर होना चाहिए रहने के लिए। इनफैक्ट आई नो मेनी पीपल वो एक घर भी लेते नहीं है। आई नो पीपल जिसका 25, 30, 50 लाख रुपया पैकेज है, बट फिर भी वो लोग बॉम्बे में घर नहीं ले रहे क्योंकि उनका वो लोग दे पे 60-80,000 रेंट। ओके, दे स्टे ऑन रेंट क्योंकि उनको मालूम है मेरे को रिटायरमेंट के बाद बॉम्बे में घर नहीं रहना है, बॉम्बे पे रहना नहीं है मेरे को। मेरा आई हैव एन एंसेस्ट्रल हाउस एट दिल्ली, गुड़गांव और जोधपुर, जयपुर, बरेली में है, तो बॉम्बे में वो लोग घर खरीदते ही नहीं है। ओके, बट इंडियंस है, इमोशनल है, एंड लेट्स अज्यूम मोस्ट आर मुंबई का, तो रहने के लिए एक घर लीजिए, दूसरा घर एज एन इन्वेस्टमेंट एब्सोल्युटली डजंट मेक सेंस इन द करंट एनवायरनमेंट। एंड जिसका भी होम लोन है, एक सिंपल टिप दूंगा, 2 चीज कीजिए। आई रिपीट, जिसका भी होम लोन है तो 2 चीज कीजिए। आई टेक, मेरा एग्जांपल है, मेरा 40 लाख का होम लोन है। आई रिपीट, मेरा 40 लाख का होम लोन है, एंड 40 लाख का 1% कितना हो गया? आई रिपीट, 40 लाख का 1% 4,000 रुपया पर मंथ हो गया, 40,000 हो गया, 40,000 हो गया। 40,000 बटा 12, 40,000 डिवाइडेड बाई 12 इज अप्रोक्सीमेटली 3,500। मोटा मोटा 3,500 रुपया SIP 20 साल कीजिए। आई रिपीट, 3,500 रुपया SIP अगर आप 20 साल करोगे तो 20 साल के बाद आप बैंक को जितना इंटरेस्ट दोगे उतना आपका SIP कमा के दे देगा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आई रिपीट, ओके, 3,500 रुपया अगर आप SIP करोगे तो 20 साल के बाद आपको SIP जितना इंटरेस्ट दे, मतलब घर आपका फ्री हो गया। ये पॉइंट नंबर 1 है। और दूसरा, इसी SIP को, वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी पीपल स्टार्ट SIP टुडे बट उनका हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस नहीं होता तो गड़बड़ है। एंड यही ऐसा, आई रिपीट, मेनी पीपल स्टार्ट SIP टुडे बट उनका हेल्थ और टर्म नहीं है। इट इज लाइक कोविड चालू है तो पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक दोनों चाहिए, तो एक लोगे दूसरा नहीं लोगे तो गड़बड़ हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद मेनी इंडियंस। SIP चालू है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। ओके, SIP चालू है लेकिन टर्म प्लान नहीं है, तो गड़बड़ हो सकता है। सेकंड चीज कीजिए, यही SIP को टॉप अप कीजिए। 3,500 रुपए का जो SIP है उसको 2 साल में एक बार 500 रुपया करोगे तो 14 साल में आपको इंटरेस्ट कमा के दे देगा। आई रिपीट, तो क्योंकि जस्ट लाइक अपग्रेडिंग स्मार्टफोन, इसको रेगुलर SIP को भी अपग्रेड करते रहना, आप यू विल बी फाइनेंशियली फास्टर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग 8 साल के बाद, आई रिपीट, आफ्टर 8 years नेवर प्रीपे योर होम लोन। आई रिपीट, आफ्टर 8 years नेवर प्रीपे योर होम लोन। रिसेंटली आई मेट अ कस्टमर, उसने 10 साल के बाद होम लोन काफी हद तक प्रीपे कर दिया। कैन समबडी एक्सप्लेन मी द लॉजिक, क्यों 8 साल के बाद प्रीपे नहीं करना चाहिए होम लोन को? इसका लॉजिक क्या है? Initially, the amount of interest is more. Because the major chunk of interest you have already paid on the capital. Hello? प्रिंसिपल अमाउंट Yes. बाद में ज्यादा जाता है। सो यस, तो पहले 8 साल में आप कष्ट लेके बैंक को पैसा दे रहे हो, तो 8 साल के बाद तो मलाई खाने का टाइम आया है, तो क्यों बैंक को जाके दे रहे हो? क्यों, वही एग्जैक्टली। ओके, तो सिंपल, आई नो मेनी पीपल
जिनका होम लोन 1 करोड़ का है, रिपीट, उनका होम लोन 1 करोड़ का है, बैंक में 2-3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ उनका, बट वो लोग होम लोन प्रीपे नहीं कर रहे क्योंकि उनको मालूम है, उल्टा वो लोग ऐसा पॉइंट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सिंपल लॉजिक है, उनको मालूम है मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मेरे को एवरेज 12% तो आ ही जाएगा ओवर ए 15 ईयर पीरियड, 12-14% आ ही जाएगा ओवर ए 15 ईयर पीरियड, एवरेज रिटर्न 14 तो आएगा। एंड जबकि होम लोन का प्रिंसिपल तो मेरा कम ही होने वाला है। ओके, मेरे को 8.5% में होम लोन मिल रहा है और हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं यार, आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो आपको होम लोन 6% में मिल रहा है, जो 6% मिलता है। 6% मतलब फ्री है, फुकट में मिल रहा है आपको। आई रिपीट, 30% है तो 6% फ्री में है। तो होम लोन कभी प्रीपे मत करना। पर्सनल लोन पहला प्रीपे कीजिए क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड लोन प्रीपे करना क्योंकि क्रेडिट कार्ड इज 30% प्लस। आई रिपीट, क्रेडिट कार्ड 30% प्लस। मेनी पीपल हो मिनिमम, अभी भी 2 days back I counseled someone, he was paying minimum balance in credit card. I said वो कभी भी नहीं होता। हाँ, काय को तू 30-36% बैंक को दे रहा है, उल्टा पर्सनल लोन लेके क्रेडिट कार्ड लोन प्रीपे करना समझदारी। आई रिपीट, पर्सनल लोन एट 14% लेके क्रेडिट कार्ड लोन देने में समझदारी है, बिकॉज फिर भी आपका 18% बच रहा है एक्चुअली। ओके, सो इमोशनल इज एक घर लोन प्रीपे मत करना। सो इफ यू फॉलो दिस, आई एम ओपन टू क्वेश्चन, प्लीज आस्क क्वेश्चन। सो ये Okay, yeah Krishnan. yeah So I simple while my sales people. So we also have this financial. I work for a financial organization. So Very we good. have this mortgage loan. So mortgage loan. But we don't have mortgage loan against property. The loan against property for business and your this thing. But our Correct. ticket size goes from 10 lakhs to 75 lakhs. Got So it. what we have come up with a concept is we have connected with HDFC, Ergo and SIPs and mutual funds. So Good. what we ask the customer is जितना आप interest pay कर रहे हो ना, उतना interest आप additional add करो and you bundle up with the SIP product. So what Correct. you gave an example, we have driven it already Very good. in Very our good. organization. So we almost you can say 70% of our customers are doing it. But then there are some people who says, okay, what if I don't have the money right away? So that's an additional amount you need to keep in SIP. But so we give a best example is lower the amount, lower the benefit that you get, and early start the early gaining you get it. That is how. Correct. Correct. In fact, let me add one more thing. Recently, I was with a person, again Indian mentality है, loan ले लेना है अपने को. So this was a customer. He was prepaying his home loan. थोड़ा part prepay कर रहा था after 4 years. I repeat. Then what I said to Krishnan, if you can, its voice is echoing, so maybe अभी हो रहा है को नहीं अभी बराबर है. तो 4 साल के बाद he was part prepaying. Then what I suggested to him, क्योंकि आप 8 साल के अंदर कर रहे हो, 4 साल में आप कर रहे हो, EMI कांस्टेंट रखना. बैंक वाला लालच देगा, बैंक वाला आपको गुमराह करेगा, बोलेगा सर EMI कम कर दो, so that they take more money. ऐसा 8 साल के अंदर प्रीपे कर रहे हो तब भी EMI कांस्टेंट रखिए, so that हर महीना थोड़ा तो. That is what I did. Okay, so you mean to say मतलब मेरा EMI अगर मैं कांस्टेंट रख के टेन्योर कम कर दूं चलेगा क्या? कम कर देगा, because in first 8 years this makes sense. अच्छा. In first 8 years, because you will end up paying lesser interest to the bank ना. Okay. बैंक वाले भी चैप्टर रहते हैं, बैंक वाले का इंटरेस्ट जा रहा है, बैंक वाला क्या बोलेगा, when I paid the loan, मेरा 2015-16 I left my job and started on my own, so I got some money, I prepaid something. अच्छा. So they gave me an option, sir EMI कम करा दो. I said नहीं मेरा EMI constant रखो. Then the tenure automatically कम हो गया ना. हर महीना मेरा 1500-2000 रुपया प्रिंसिपल से जा रहा है वो. ऐसा है. तो वो लोग ऑप्शन यही देगा कि EMI कम कर दो, सर बोझ कम हो जाएगा. They are smarter people. अच्छा. Vikram here. Hi Vikram, बोलो. Krishnan just wanted to understand small concept of liquid fund. Liquid fund is nothing but as the name suggests, the money is very liquid. Example दे सकते हो क्या? तो that would be more better. Example दे सकते हो क्या? Can you give some? ओवरनाइट का एग्जांपल देता हूँ ना. लिक्विड का मतलब क्या है कि जल्दी लिक्विडेट कर सकते हो. अभी आई टेक रियल एस्टेट बेचना डिफिकल्ट है. ये मार्केट में तो बेचना. आई नो ऑफ इन्वेस्टर्स, आई नो ऑफ फ्रेंड्स जिसने 30 लाख रुपए में पवई में घर लिया. आई रिपीट, 30 लाख रुपए में
गांधीनगर के यहाँ पे घर लिया, आज के दिन में 2.5 करोड़ रुपया है, ओके, बट घर जा नहीं रहे, 6 साल से घर जा ही नहीं रहे, तो सिंपल है, गेन्स आर नोशनल एंड प्राइस इलिक्विड है, बेचने में टाइम जाता है। इनफैक्ट एक पर्सन कनाडा से आया था बट वो बायर बैकआउट कर दिया, ऐसा माय बचपन का दोस्त है मेरा। ओके, सो रियल एस्टेट इज हाईली इलिक्विड। तो बट लिक्विड म्यूचुअल फंड क्या है, आपका पैसा हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा, मतलब जिसको बेचने में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, और बेचोगे तो 100 रुपया इन्वेस्ट किया, पूरा 100 रुपया वापस आ जाएगा। इससे भी सेफ है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट में आपका पैसा एक दिन के लिए, रिपीट, ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा एक दिन के लिए आरबीआई के पास इन्वेस्ट होता है, क्योंकि लिक्विड म्यूचुअल फंड 99.95% सेफ है। आई रिपीट, लिक्विड म्यूचुअल फंड 99.95% प्लस सेफ है, बट अभी भी अभी क्योंकि सिनेरियो खराब चल रहा है, एक 0.001% प्रोबेबिलिटी है नुकसान होने का। जो भी पिछले 20 साल में देखोगे तो 1-2 बार हुआ ऐसा इवेंट, बट ओवरनाइट फंड करके एक फंड है जहाँ पे आपका पैसा आरबीआई के पास जाता है, ये वर्चुअली सेफ है, इसमें बिल्कुल रिस्क है ही नहीं। दी एडवांटेजेस, इसमें इंटरेस्ट कम है लेकिन पैसा आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर बैंक में रहेगा तो अननेसेसरीली खर्चा हो जाएगा। आई होप आई वाज क्लियर। या तो बेटर कौन सा है, ओवरनाइट या लिक्विड वाला? सेफ्टी वाइज 100% ओवरनाइट, बट लिक्विड में थोड़ा रिस्क है। देखो, ऐसी घटना, कोविड जैसी घटना सदियों में, 100 साल में कोविड नहीं घटा है, तो ऐसा कुछ घटना होगा तो नुकसान होगा। ओवरनाइट ये कंडीशन में भी सेफ है। ओके, ऐसा है। Is it a good option to invest in shares? You can invest in direct shares also, but direct shares and mutual fund का दो एक एग्जांपल लेके I would explain in a simple way. Let's take example. I was always a conservative student. I was always an average student throughout my academics. Okay, I was an always. तो मैं क्या करता था, पूरा सिलेबस पढ़ता था मैं, पूरा सिलेबस पढ़ता था, एंड 65 मार्क्स मेरे को आया है, 60-65 आया है मेरे को बचपन से। Okay, बट मैं आफ्टर कॉलेज मेरा, सिंस आई एम बोर्न एंड बॉट अप माटूंगा, आई हैव लॉट ऑफ गुज्जू पंटर दोस्त लोग। लोग क्या करेगा, एग्जाम का 15 दिन पहला पिछला 5 साल का पेपर निकालेगा, दे विल डू इनाम 4 चैप्टर पढ़ेगा, 4 चैप्टर में से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अच्छा, वो भी 65 मार्क का ही अटेम्प्ट करेगा वो लोग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 45 दे हैव गॉट 45 पास हो गया, बट एक केस में वो 4 चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आया तो गड़बड़ हो सकता है। हाँ, बराबर। दैट इज द if you invest in stock, direct stock में रिटर्न ज्यादा है। रिपीट, डायरेक्ट स्टॉक में रिटर्न पोटेंशियल इज वेरी हाई, बट विकेट गिरने का भी चांस है आपका। हाँ, चांस है। If you invest in a mutual fund, it will work like राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, 2 सब्जेक्ट सिलेबस पढ़ा है, आपका पैसा इनडायरेक्टली 35, 30, 40 स्टॉक सेक्टर्स में इन्वेस्ट हो गया, तो रिस्क ऑब्वियसली कम हो गया है। ऐसा। एंड अगेन, बिफोर इन्वेस्टिंग देयर इज अ रूल इन इन्वेस्टिंग, बिना इन्वेस्ट किए, जैसा बिना कुंडली देके शादी नहीं कर सकते हो, ओके, बिना कंपनी का 5 साल का बैलेंस शीट पढ़े, बैलेंस शीट देख के, बिना बैलेंस शीट देके आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। So I don't know how many of you have that, not many of us have that expertise or time to devote studying balance sheets of 5 years. Actually, you need to understand in and out of the organization, then only you can. Yes, yesterday I was speaking to one of a doctor. He was also saying the same thing. अरे मी डायरेक्ट इक्विटी मध्ये इन्व्हेस्ट करतो। मी बोला साहेब तुम्ही डॉक्टर आहे, तुमचा कोर कॉम्पिटन्सी काय? वो बोला नाही नाही, मी आयटी चा शेअर घेतलाय, ये शेअर चांगला है। नहीं साहब तुम्ही डॉक्टर है। आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कनेक्टिंग, ही इज अ डॉक्टर। तो मैं बोला सर आपको वो कंपनी मालूम, ही इज अ डॉक्टर सो ही कैन अंडरस्टैंड फार्मा बेटर देन मी। करेक्ट सेड सर, आप फार्मा कंपनी का बैलेंस शीट, फार्मा कंपनी का मार्केट शेयर से स्टार्ट करो। सो दैट्स हाउ यू डेवलप द एक्सपर्टाइज ना। सो एंड म्यूचुअल फंड इज गुड, बट आपका पैसा है, सो यू शुड बी ऑल्सो मोर इंक्लाइंड टू योर मनी। इट्स लाइक मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है, तो आई कैन नॉट ब्लाइंडली रिलाई ऑन द ट्यूशन टीचर। वो ट्यूशन टीचर के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए मेरा। तो सिमिलरली इज द केस विद इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इसको रेगुलर 2 महीने 3 महीने में एक बार तो मॉनिटर करना चाहिए ना। द बैड पार्ट ऑफ इंडियंस आर नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग फाइनेंसेस विद फैमिली, विद फाइनेंशियल एडवाइजर। उनको लगता है फाइनेंशियल एडवाइजर दिख गया तो ये तो कुछ ना कुछ बेचने ही वाला है, ऐसा है। वो क्या डर है मेरे को मालूम नहीं है, वो एक फोबिया है इंडियंस का। एंड दिस इज अ गुड पॉइंट ऑफ टाइम टू रिव्यू योर फाइनेंसेस एंड डिस्कस योर फाइनेंसेस विद फैमिली, which again Indians are not comfortable discussing.
Any questions? Any questions, guys? Anyone? Now I can speak on mutual funds in a broader way, but क्योंकि the time slot is far less, so I thought let me focus this session on the process part. अगर मेरा process सही है तो outcome आएगा. देखो ओवर 15 and 20 year period सबसे खराब और बेस्ट म्यूचुअल फंड में बहुत फर्क नहीं है. खराब और एवरेज में भी ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस एवरेज होने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कृष्ण विक्रम ये हाय विक्रम. अच्छा, आपने जो सेकंड बकेट बताया था बिग हाँ. एक्सपेंस वाला, उसमें बेस्ट कौन सा म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड में इज शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. आप इस फंड्स में बैंक एसआईपी भी कर सकते हो. इनफैक्ट इट विल बी फैबुलस इफ यू डू एन एसआईपी फॉर गोल्ड टू शॉर्ट टर्म इनकम फंड, बैंकिंग एंड पीएसयू फंड. फिर थोड़ा रिस्क रिटर्न थोड़ा ज्यादा चाहिए और रिस्क भी ले सकते हो, तो क्रेडिट रिस्क आल्सो आई वुड क्लासिफाई हियर, बट रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा. वॉइस ब्रेक हो रहा था, समझ में नहीं आया क्या बोला आपने. बैंकिंग पीएसयू फंड मैं टाइप कर देता हूँ. हाँ ओके. बैंक PSU funds. डेट फंड होता है बैंकिंग एंड पीएसयू फंड करके. हाँ. तो उसमें 5 इयर्स के लिए कर सकते हैं क्या? किसके लिए? 5 मतलब सेकंड बकेट के लिए वो सेकंड बकेट आप टाइप कर दोगे क्या नाम? कर दिया मैंने. उसमें क्या है मतलब उसमें आपका पैसा बैंक में ही जाएगा और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाएगा, जैसा इंडियन ऑयल है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल है, ओकेसीएल है, वहां पे जाएगा. मान लो कि मैं Your voice is bit on the lower side. No. One second. एक्चुअली आपका टेक्स्ट नहीं मिला अभी तक. Okay, 1 second. I will write it here. Vikram. या Yeah, you can now check it out. कृष्णन आपका वॉल्यूम म्यूट हो चुका है, अनम्यूट करोगे आप अपना? हाँ अभी सुन रहा है. हाँ बराबर. अभी ये और लॉन्गर रन के लिए कौन से है? लॉन्गर रन बकेट 3 में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आएगा. इक्विटी म्यूचुअल फंड, डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड वो आएगा, बैलेंस फंड वो सब आएगा. काफी सारे हैं. ओके थैंक्स. Krishnan, your voice is going on mute as of now. I don't know why. अभी नाउ बेटर ना. नाउ फॉर सैलरीड गाय अगर बेस्ट फॉर्म इज ELSS. अगर ELSS फर्स्ट एक्सप्लॉइट ELSS, अगर ELSS के ऊपर भी कुछ पैसा बच रहा है, देन थिंक ऑफ लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और मल्टी कैप फंड. एंड आज के दिन में नीड ऑफ दी आवर है, अगर डाइवर्सिफिकेशन चाहिए देन यूएस बेस्ड फंड्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज यूएस इज अ जायंट कंपनी. 55% ऑफ ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन इज यूएस. दैट्स अ डिफरेंस. एक्चुअली फेसबुक, अमेज़न, ये सब कंपनी में आपको एक्सपोजर, हम ये सब कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है. आई रिपीट, फेसबुक, अमेज़न सबका सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है. तो इंडियन इन्वेस्टर्स का यूएस इक्विटीज में एक्सपोजर होना ही चाहिए, व्हिच अगेन नॉट मेनी इंडियन इन्वेस्टर्स हैव दैट. क्योंकि वो मीडिया देखता है तो हमको लगता है कि इंडिया ही सब कुछ है. इंडिया है, but definitely US is far bigger. Simple logic है. India is 2% of global market cap today. US is 55% of अजगर है US. नहीं, ELSS schemes भी बहुत अच्छे हैं ना. ELSS for a salaried guy best. Salaried guy is okay. Yeah. जिसकी बेटी है, जिसकी बेटी होगा तो if you कुछ पैसा सुकन्या समृद्धि में भी इन्वेस्ट कीजिए. Actually सुकन्या समृद्धि. Those who have daughters, please invest in सुकन्या समृद्धि. क्योंकि it is goal based, simple है. और बेटी 18 साल की हो गई तो पैसा निकाल सकते हो, नहीं होगा तो 21 में पूरा पैसा निकाल सकते हो. तो those who have a daughter, for example Sachin is my friend who is logged in, okay, he has a daughter, so I would, in case he has not, Sukanya Samriddhi is ideal, because any investment which is goal based is better. and Sukanya Samriddhi में ATC का भी benefit मिलता है. So ELSS is basically equity linked. ELSS is a multi cap fund. Yeah. Equity linked है वो. Equity linked savings scheme. Vikram, for you it is equity linked savings scheme. ELSS. ELSS. It's not ESLL but ELSS. Yeah. Correct. ELSS equity link. इसमें आपका हर SIP 36 महीने के लिए लॉक इन होता है. I repeat, every SIP is locked in for 36 months. 36 months, yeah.
But नहीं SIP that is तो also salary- dependent on how SIP तो वो इंसान के ऊपर भी है ना, कितने मंथ के लिए लॉक इन पीरियड चाहिए करके कि वो तो है आइडियली इट्स 1 ईयर। देखो करंट मार्केट में तुम देखोगे क्योंकि मार्केट इतना गिरा है, जस्ट टू एट दैट्स व्हाई मैंने एक टर्म बोला था स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करके। SIP सिस्टमैटिक बट टुडे यू हैव टू बी स्मार्टर आल्सो। व्हाट डू आई मीन बाय स्मार्टर? मार्केट गिर रहा है तो खुद का पैसा थोड़ा और डालने का है, बिकॉज लास्ट ये मार्केट इतना गिरा है 42 से 30 गिरा है, तो 5 साल का SIP नेगेटिव रिटर्न है, 7 ईयर SIP नेगेटिव रिटर्न मेजॉरिटी ऑफ देम। तो इसका फायदा नहीं उठाओगे by topping up your SIP. Dr. Sushil Mishra, you are missing the opportunity. Dr. Sushil Mishra is asking a question here. What is the process to invest on overnight fund? आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो मिश्रा जी। ओके, देयर आर एवरी म्यूचुअल फंड विल हैव एन ओवरनाइट। आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और आपका डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी कर सकते हो। आज के दिन में देखो पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी ड्रिवन आ गया है। लॉकडाउन है लेकिन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अब्सोल्युटली चल रहा है म्यूचुअल फंड, क्योंकि पूरा उतना टेक हो गया है हर इंडस्ट्री में। अभी ये हमारा वेबिनार चल रहा है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, तो बिना टेक्नोलॉजी कुछ होने ही वाला नहीं है ऐसा। तो टेक के थ्रू आप आसानी से कर सकते। यस, इट वुड बी अवेलेबल फॉर 7 to 10 days। आपका सवाल का जवाब है विक्रम जी। हाँ, कांटेक्ट तो कर सकते हो आप मेरे को। तो सिंपल है, ये 5 सीक्रेट को मैं 5 पांडव बोलता हूँ। Anybody else who wants to? Sorry, 5? मैं इसको 5 पांडव बोलता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग। 5 पांडव और छठा करण HITTS। आई रिपीट HITTS, नीचे लिख रहा हूँ चैट बॉक्स में HITTS। ये पांडव हो गया। HI इज हेल्थ इंश्योरेंस, T इज ट्रेडिशनलिस्ट, पहला वाला टी आता है टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, एनुअल इनकम मंथली इनकम का 150 गुना। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक PF PPF भी होना चाहिए, थोड़ा FD भी होना चाहिए, लेकिन FD कम करो। ज्यादा इंडियंस क्या करता है अभी, खाना खाते वक्त हम प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, सब खाते हैं। ओके, सिमिलरली हमारे इन्वेस्टमेंट्स को भी सब जरूरी है, इक्विटी जरूरी है, FD जरूरी है, डेट भी जरूरी है। बट इंडियंस क्या करते हैं, ज्यादा चपाती खाओ तो गड़बड़ हो जाएगा, ज्यादा राइस खाओ तो भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो चपाती राइस का आइडियल कॉम्बो होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल फॉर अ सैलरीड गाय, बेस्ट ट्रेडिशनल इज द प्रोविडेंट फंड जो सैलरी से कट रहा है। आई रिपीट, उससे अलावा कुछ पैसा चाहिए, देन कुछ कॉर्पोरेट्स में VPF कटता है। आई रिपीट, आई वाज विद आदित्य बिरला ग्रुप, तो मेरा VPF कटता था, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कटता था। अगर आपका ये कट रहा है तो बेस्ट है, इसमें एक्स्ट्रा करवा दो, टेंशन ही नहीं है। देन सेकंड है Krishnan, here is a question. So voluntarily PF is an employee's choice. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, अभी मेरे ऑफिस में वॉलंटरली PF है, बट जो 12% PF कटता है वो तो कटता ही है बेसिक। बट VPF जो है वो मेरा चॉइस है एंड आई कैन डू इट ऑनलाइन फ्रॉम PF का EPFO ऑफिस से। Correct. But do you recommend it to raise by an employee stating that okay बढ़ा दो करके? नहीं, डिपेंड। सी आई वाज विद आदित्य बिरला ग्रुप, तो आदित्य बिरला ग्रुप में ये था अप्रैल और अक्टूबर में HR पेरोल को इंटीमेशन देना पड़ता है, मेरा डबल करा दो करके। अच्छा। सो आई वुड नॉट नो अबाउट अदर, बट जनरली ये पेरोल से ही होगा ऐसा है। इफ यू आर एन एम्प्लॉयर वो पेरोल के थ्रू होगा। हमारा पेरोल से नहीं होता, हमारा वो है, क्या कहते हैं उसे, इट इज वॉलंटरली। सो अगर किसी को करना है तो यू कैन गेट बैक टू HR and HR will help us. That is how it is. Pranavesh, somebody wants my mobile number. Do I give him? Yeah, sure. Go ahead. Bindas, कोई टेंशन नहीं। हाँ, तो नेक्स्ट इज सुकन्या समृद्धि, लास्ट इज SIP। आई रिपीट, ओके। तो इसको मैं 5 पांडव बोलता हूँ और छठा करण है 5। ये होगा तो आपका फाइनेंस आपके कंट्रोल में रहेगा। एक मिनट, करण इज व्हाट? SIP। अच्छा, ओके। सो आई वांट टू नो दैट HITTS का फुल फॉर्म। वन इज हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड इज इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस। अच्छा, हेल्थ एंड इंश्योरेंस, HI इज हेल्थ इंश्योरेंस, T इज टर्म इंश्योरेंस। ओके। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड, PF PPF भी होना चाहिए।
Okay. Next S is for those who have daughter, Sukanya Samriddhi. And last SIP is Karan SIP, which is actual mutual fund SIP. Oh, okay. तो इसके लिए मैं I call it 5 पांडव and Karan. अच्छा, okay. अभी बहुत इंडियंस क्या करते हैं, ये HIT ही नहीं है उनके पास. एवरेज इंडियन इंश्योरेंस 2 लाख का है और हेल्थ इंश्योरेंस भी 2 लाख का है. एक सिंपल लॉजिक है, 2 लाख में आज के दिन में कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता, बराबर है. डेंगू मलेरिया हो गया तो 2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है आपका. डेंगू मलेरिया 2 लाख हो गया. So ये दोनों के लिए गोल्डन रूल है. Buy it when you don't need it. I repeat, when you need it, you will never get it. I am in the insurance and professional last almost 2 decades. तो गोल्डन रूल यही है, खरीदो जब जरूरत ना हो, क्योंकि कभी जरूरत पड़े मालूम नहीं है. ऐसा. And when you need it, if you don't have it, then family is in trouble. Actually. तो इंडियन का साइकोलॉजी वही है कि स्टार्टिंग अच्छा मुझे होगा, बुरा और किसी को होगा, इसके लिए हम ये लेता नहीं है. But again, events like COVID, it's an eye opener. So buy it when you don't need it. Okay, no worries. I guess there's no question at all. You can take it over on the WhatsApp group of Lockdown Series, Krishnan. Any questions if you have, people, you can note his number down, 970271844. Here is a number. And so, Meena ma'am, you had a question, I guess. Meena ma'am ka question. Small one, because I missed out on that. His HITTSK. First is health insurance, second is term insurance. What is the third one? No, first is health insurance, second is insurance. Term insurance. No. HI is health insurance. Acha. Then is term insurance. Then the next T is what? Traditional form of investment. FD, PPF, वो सब भी आता है. Oh, so then there is Sukanya and then there is SIP. Sukanya Samruddhi and Karan is the SIP. Karan is the last SIP. Okay. तो जिसको लड़की है उसके लिए एक और ऐसा आएगा, करण आएगा. I have a son, तो मेरे को only 5 पांडव ही आएगा. नहीं, पर जिसको ना बेटा है अभी ना, मेरे सारा वो सब हो गया, लेकिन I have to sort of think of my, I'm now 68 and I'm still working. Then health insurance is a priority for you, ma'am. मेरा health insurance है रेलिगेयर में. ये कितने का है उसको अपग्रेड कीजिए. देखो कितना भी होगा कम है, उसको थोड़ा अपग्रेड कर सकते हो तो अच्छी बात है. It's like I bought a smartphone 32 GB और 3 GB लिया था 2 साल पहले. अभी वो पूरा फुल हो गया है, तो नेक्स्ट टाइम मैंने तो श्योर है नेक्स्ट टाइम मैं लूंगा. क्या, बट मेरा वो 20 लाख तक हो गया है अभी. So नहीं, 20 lakhs is decent. इस 20 lakh ये आपका ही है या इस your husband और somebody else? फैमिली फ्लोटर वाला वो है. नहीं, सिर्फ मेरा. नहीं, 20 lakhs decent है. Very 20 lakhs decent है. Actually, I started with 5 lakhs, but because I had no claims or anything in between, so it has gone up to 20 lakhs now. Very good. Fabulous. Then decent है. 20 lakhs is decent. तो वो है, लेकिन I still have to, put aside or collect something for how long will I work, So something happened because of which I don't have any big savings. Of course, I have a couple of mutual the objective of this webinar was to give a trailer. It's like all financial plannings are customized. Abhi main entirely, it is difficult for me to speak and give immediate prescription over the phone or the webinar. Okay. So I will have to understand your finances. Then only I can. So what we can probably do is, Meena ma'am, you can just take down the number of Krishnan, and the number is 97027 18444. 18444. Yeah. So you can contact him again, and you can take it over all the financial help. And obviously, एक financial lawyer हमेशा चाहिए होता है. So Krishnan is the best guy to help you out. Yeah. Okay. So thank you so much, Krishnan. Here, it was a wonderful session. Although I couldn't join in the start of the session because there's some emergency here. So thank you all, Elderly Global Mumbai. Thanks you and for the entire wonderful session. You were all a lovely audience together. We will all get in touch base tomorrow again with another interesting
episode tomorrow evening, 7 o'clock. Stay tuned. Thanks Questions? everybody. Thanks everybody. Good night. My dreams are always Yes. bullish. Yeah. Thank you so much. Thanks. Stay tuned, stay watching. Collaborate, Yeah. cooperate, and contribute. Thank you so much, guys. Thanks everybody.